हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। पिछले वीडियोस में हमने बैक एंड स्कैपुलर रीजन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ वील बी मूविंग ऑन टू द बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब। तो ये सीक्वेंस जो है इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बुक्स, बट दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस टू स्टडी। तो आज वी विल बी डूइंग क्लैविकल, नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट वीडियो स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, एंड देन वील स्टार्ट विद द axilla and brachial plexus. Axilla and brachial plexus is very difficult topic. Many students उनको डाउट होता है उसमें, but I'll explain it so easily it will be crystal clear. So let's start with clavicle. So starting with the clavicle, let's draw it because draw करने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. So this is something, the clavicle. ठीक है. And first let us start with this. So this is the superior view. This is the superior view of the clavicle. Superior, from the top we are looking at it. So from the top, when we see this is the acromial end. Acromial end. This is towards the acromial process. It articulates with the acromial process, and this is the sternal end. मतलब name से suggest हो रहा है कि ये sternum से articulate करता है. Good. Next, इस पे upper part पे ज़्यादा कुछ है नहीं. Just remember ये medial side है. This is the medial. So this is the medial. So basically this is right side clavicle. You see, this is the right side clavicle. This is medial two third of the clavicle. अभी तक ये सब हम लगभग लगभग पढ़ ही चुके हैं, बट जस्ट हमने नेम के टॉपिक के अंदर ये बोन डिस्कस नहीं की, वरना बाकी सब एवरीथिंग अबाउट द बोन वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, एंड दैट इज द मेन थिंग कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस रूट कि पहले मसल्स एंड देन द ब्लैक एंड स्कैपुलर रीजन एंड देन द बोन्स, बिकॉज इससे मेजर पार्ट ऑफ द बोन्स इज ऑलरेडी कवर्ड. वी जस्ट नीड टू गिव इट्स बेसिकली अ रिविजन. ओके, या सो ये सुपीरियर व्यू था. नेक्स्ट इफ वी ड्रॉ द इंफीरियर व्यू. So this is the acromial end, this is the sternal end. Things over here. Okay, and so this is the inferior view of the clavicles. Inferior. तो ये acromial end है. This is the acromial end, and this is the sternal end. Okay. अच्छा. Now this thing over here, this ridge-like thing, इसको कहते हैं, this is called the trapezoid ridge. This is the trapezoid ridge. We'll study क्या होता है इससे attached. Trapezoid ridge, and this thing, this here, called the conoid tubercle. Tubercle is basically a protuberance, एक उठा हुआ एरिया. What is this? इसकी muscle we have already studied. So this is basically the subclavian groove. यहाँ पे याद कीजिए, subclavian groove पढ़ते समय we read कि the middle third, this is the middle third. If we divide it into one third, and one third, this is the middle third. This middle third of the clavicle, यहाँ पे the subclavius muscle gets attached on the inferior surface of the clavicle, middle third clavicle, in the subclavian groove. So this is nothing but the subclavian groove. Yeah? And यहाँ पे एक rough सा patch show करना चाहे. This is rough impression for the costoclavicular ligament. अभी हम पढ़ने वाले हैं attachments of the all surfaces, so it will be more clear. So this is the superior, ऊपर से देख रहे हैं. This is the top view of the clavicle. This is the inferior, bottom view of the clavicle, नीचे से देख रहे हैं. Top view में we have the acromial end,
एंड दिस साइड वी हैव द स्टर्नल एंड। स्टर्नल एंड पे मीडियल टू थर्ड पार्ट होता है एंड लेटरल वन थर्ड पार्ट होता है। सुपीरियरली देख रहे हैं, इंफीरियरली when we say inferior जो है ना, this upper part is very smooth as compared to the lower part. It also अभी side determination just next हम देखने वाले हैं, वो side determination में भी help करता है। The upper part is smooth but the lower part is like it has grooves and ridges. तो यहाँ पे पहला ridge होता है trapezoid ridge। trapezoid को इसको याद रखने के लिए remember कि trapezoid ridge जो होता है वो laterally होता है and conoid tubercle medially होता है। अगर हम देखें this is laterally and this is medially। so इसको याद करने के लिए one mnemonic you can make CM। ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा चीज कौन सा है। कई बार स्टूडेंट्स लेबल दिस एज द ट्रेपेजॉइड ridge एंड दिस एज द conoid tubercle। दिस CM से याद रखिएगा। C stands for conoid and this is medial। Then this is great। Inferior। That's next। Let's start with the side determination। तो हाँ, one more important thing, this clavicle does not ask in theory exam, this is only for practical। इससे वाइवा आता है but this is only for practical। क्लैविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस, ये सिर्फ इससे बस प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी में नहीं पूछा जाता। एक आध एमसीक्यू अगर आ भी गए तो आ गए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आते। एलएक्यूज आर नॉट फ्रॉम दिस, जस्ट रिमेंबर दैट। तो अगर आपको सब पॉइंट्स याद नहीं है बट यू स्टिल जस्ट नो द साइड डिटर्मिनेशन एंड द अटैचमेंट्स ऑफ मसल, दैट इज इनफ, दैट विल बी इनफ फॉर योर वाइवा। तो पहले लेटरल एंड हमने देखा, मीडियल एंड देखा, दिस इज द मीडियल एंड, दिस इज द लेटरल एंड। ओके, तो लेटरल एंड जो है दैट इज फ्लैट, ये चपटा सा रहेगा। बट जब मिडिल एंड देखोगे, ये मिडिल एंड की फोटो है, दिस इज क्वाड्रेंगुलर टाइप, दिस इज क्वाड्रेंगुलर टाइप। एंड बोन बैंक से एंड या फिर अगर बोन सेट में आपके पास होगा देन यू विल सी। सो द लेटरल एंड इज फ्लैट, मिडिल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, मिडिल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, दिस इज द मिडिल एंड ऑफ द clavicle। Now superior surface is smooth, मैंने अभी बता ही दिया this is smooth, but inferior surface as you can see in the diagram also it is not smooth, it has ridges and all। so inferior surface it has ridges। तो इसको किसी भी मसल को किसी भी बोन को साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें तीन एक्सिस में देखना होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल मीडियल। लेटरल मीडियल तो ऐसे पता चल जाएगा, सुपीरियर, इंफीरियर। अब एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए सी ए याद रखना है, कॉन्वेक्स एंटीरियरली। सो द बोन, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस विल बी कॉन्केव ना। तो ये एंटीरियर आगे की तरफ से अगर देख रहे हैं, सो लाइक if our eye is placed over here, if our eye is placed over here, तो आगे से देख रहे हैं तो एंटीरियर से देखेंगे तो दिस विल बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंटीरियरली, कॉन्वेक्स एंटीरियरली। डन, ग्रेट। मीडियल वन थर्ड एंड इंफीरियर रिजेस, ये सब हो गया। सो इसको देख के अब अगर हम इसका साइड डिटरमिन करने की कोशिश करें तो मीडियल और लेटरल हमने देख लिया, ठीक है। सुपीरियरली देख लिया, ये सुपीरियर है क्योंकि ये फ्लैट है, एंड कॉन्वेक्स एंटीरियरली। तो अगर अब ध्यान में इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए इन योर ब्रेन अ ह्यूमन। सो दिस इज द राइट क्लैविकल, दिस इज द राइट क्लैविकल, ग्रेट। दैट इज ऑल अबाउट साइड डिटर्मिनेशन। तीन एक्सिस में देखना है, लेटरल मीडियल समझ आ जाएगा, मीडियल टू थर्ड होता है, लेटरल वन थर्ड होता है, लेटरल एंड इज फ्लैट, चपटा रहेगा, एंड क्वाड्रेंगुलर होगा मीडियल एंड आपका। सुपीरियर सरफेस स्मूथ है, इंफीरियर सरफेस हैज रिजेस, एंड सीए से याद रखना है कॉन्वेक्स एंटीरियरली। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। जब पार्ट्स ऑफ द क्लैविकल में आते हैं एंड एनाटॉमिकली आपको क्लैविकल को अगर होल्ड करना है तो हाँ, तो इसमें वाइवा में पूछते हैं कि होल्ड इट इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो अगर ये राइट हैंड का क्लैविकल है तो आपको इसको राइट हैंड में कुछ ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। द एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब इस तरह से होना चाहिए कि ये सुपीरियर एंड ऊपर की तरफ रहना चाहिए एंड जो इंफीरियर एंड है वो नीचे होना चाहिए। जिस साइड का क्लैविकल है उस हैंड में होल्ड करना है। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ द क्लैविकल में किसी भी लॉन्ग बोन के दो पार्ट्स होते हैं, नॉट ओनली क्लैविकल, जो भी लॉन्ग बोन हम पढ़ने वाले हैं, पहले होते हैं उसके एंड्स एंड उसके बाद होता है शाफ्ट, और एंड में यहाँ पे होता है लेटरल एंड एंड यहाँ पे होता है मीडियल एंड, ठीक है। अब लेटरल एंड में
The lateral end of the clavicle has an oval facet. यहाँ पे ना the lateral end यहाँ पे oval facet होता है. Show you the diagram, it will be possible. Lateral end of clavicle, oval facet. Yeah, this is the acromial end. इस रीजन में ना, दिस इज द acromial end. तो इस रीजन में इन दिस रीजन यहाँ पे एक ओवल सा ना स्ट्रक्चर होता है. ये जो स्ट्रक्चर है आपको थोड़ा उठा हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस इज द ओवल फेसेट ऑफ द क्लैविकल. दिस इज द ओवल फेसेट ऑफ द क्लैविकल. यहाँ पे आके इसका काम क्या होता है, द ओवल फेसेट का वर्क क्या होता है, कि जो ओवल फेसेट होता है that articulates with the acromial facet, क्योंकि that is the acromial part of the clavicle, acromial end of the clavicle, and वो articulate हो रहा होता है with the acromial process. तो oval facet of the clavicle and the acromial facet of the acromion, ये दोनों connect होते हैं and acromioclavicular joint बनता है. तो oval facet and it helps in the acromioclavicular joint. medial end में स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बनता है. मतलब स्टर्नम और क्लैविकुल का जॉइंट बनता है, इसीलिए इस मीडियल एंड को स्टर्नल एंड भी कहते हैं, कि ये क्लैविकुलर नॉच ऑफ मैन्योब्राम स्टर्नाई से आर्टिकुलेट कर रहा होता है. तो दिस इज द मैन्योब्राम स्टर्नाई एंड ये होता है क्लैविकुलर नॉच. दिस इज द क्लैविकुलर नॉच. तो अब एट दिस पॉइंट तीन चीजों को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. The medial end of the clavicle provides attachment to three things. पहला होता है फिब्रस कैप्सूल, दूसरा होता है आर्टिकुलर डिस्क एंड तीसरा होता है इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. ठीक है, सो let's draw it. We try to draw it. This is the manubrium sternum. तो पता चली गया होगा. This is the body of the sternum. This is the clavicle. Okay, so यहाँ पे ना तीन चीजें रहती हैं. दिस एंड स्टर्नम के बीच में ओवर है ये इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट होता है. So both the clavicles are joined by the interclavicular ligament. कोई बोन नहीं है, कोई मसल नहीं है जो इनको ज्वाइन कर रही है, तो जस्ट इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट इनको ज्वाइन कर रही है. तो यहाँ पे एक दो तीन चीजें होती हैं विद द क्लैविकल, तो उसको देखते हैं. इन दिस जॉइंट एक तो फिब्रस कैप्सूल होता है. एवरी साइनोवियल जॉइंट हैज अ फिब्रस कैप्सूल. ये है फिब्रस लेयर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. तो एक होता है साइनोवियल लेयर, उसके अंदर रहता है साइनोवियल फ्लूइड, एंड उसके ऊपर एक रहता है फिब्रस लेयर. दिस इज द फिब्रस लेयर. तो पहला तो होता है वही फिब्रस कैप्सूल होगा. एवरी जॉइंट हैज इट. ये दिस इज द फिब्रस कैप्सूल ऑफ द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट. उसके बाद और इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट हमने देख लिया. दिस इज द इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. दिस थिंग इज द इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. ये दोनों क्लैविकल को ज्वाइन कर रहा है. दिस इज द इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. ओके, दिस इज द इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट. उसके बाद आर्टिकुलर डिस्क होती है. तो वो आर्टिकुलर डिस्क क्या होता है, इस दिस इज अ सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. दिस इज अ सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. तो ये आर्टिकुलर डिस्क क्या करती है, इस जॉइंट को दो पार्ट्स में तोड़ देती है. एक ये पार्ट हो गया एंड एक ये पार्ट हो गया. तो ये दो पार्ट ना अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं. और क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब भी आता है, तो कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट भी बन रहा होता है. द कार्टिलेज एंड स्टर्नम आर अटैचिंग, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट रिब ओरिजिनेट कर रही है. दिस इज द फर्स्ट रिब. तो ये दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देती है ताकि यहाँ पे स्मूथ मूवमेंट हो सके, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द जॉइंट. तो द मीडियल एंड provides attachment to three things: the fibrous capsule, articular disc, and interclavicular ligament. What is the articular disc? It is basically just fibrocartilage sheath. It is a fibrocartilage sheath which divides the uh, sternoclavicular joint into upper and lower part for smooth movement. And क्योंकि ये joint बहुत ज़्यादा आई कैन से
इस जॉइंट पे बहुत सारा ट्रैफिक है, अगर हम देखें यहाँ से ये भी अटैच हो रहा है, यहाँ से ये भी अटैच हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क आ जाती है। ये समझ आ गया। So parts done. अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द मसल अटैचमेंट्स ऑफ द क्लाविकल। तो हमने ना एक चीज याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि लेटरल एंड चपटा होता है एंड फिर ये जो एंड होता है दिस इज ब्रॉड। तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लेटरल एंड में ना एंटीरियर सरफेस नहीं है, दिस इज जस्ट अ बॉर्डर। एंड ऐसे ही पोस्टीरियर सरफेस नहीं होगा, पोस्टीरियर भी बॉर्डर होगा, बट सुपीरियर सरफेस होगा एंड इंफीरियर सरफेस होगा। तो यहाँ पे बॉर्डर स्लैश सरफेस का मतलब है कि लेटरल एंड में इट इज द बॉर्डर, एंड जब मीडियल एंड की बात करें तो सरफेस है, क्योंकि मीडियल एंड कुछ ऐसा है ना। तो मीडियल एंटीरियर सरफेस भी होगा और इसी के पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस भी होगा, तो इसलिए दोनों है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीडियल टू थर्ड। मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल, लेट्स स्टार्ट। तो एंटीरियर सरफेस, क्योंकि ये मीडियल पार्ट है, इस पे पेक्टोरालिस मेजर अटैच हो रहा था। द क्लैविकुलर फाइबर्स ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर राइज फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल, ठीक, ओके। एंड पोस्टीरियरली ये एक नई मसल है, दिस इज द स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल। Let me try to pick if we have it. Sternocleidoid muscle. Hmm. This is the sternohyoid muscle. I'll add one more page over here. So this is nothing but the sternohyoid muscle. Let me see it clearly. Yeah. So this is the sternohyoid muscle. This is the sternohyoid muscle. ध्यान से देखिए, क्लैविकल है, ये इसका आगे का सरफेस, ये मीडियल पार्ट है, दिस इज द मीडियल टू थर्ड, दिस रीजन इज द मीडियल टू थर्ड। इसमें ये आगे का पार्ट, आगे के पार्ट से पेक्टोरालिस मेजर के फाइबर्स राइज हो रहे थे, ओरिजिन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर, एंड यहाँ से स्टर्नोहायोइड आके पीछे, अगर लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट, तो ये, ठीक है। एंड ये फाइबर्स आगे की तरफ से तो ये रह गए, पीछे की तरफ से दीज फाइबर्स कमिंग एंड अटैचिंग पीछे की तरफ से द स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है। तो ये हो गया स्टर्नोहायोइड, समझ आ गया होगा। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड पे स्टर्नोहायोइड मसल होता है। अब सुपीरियर देखते हैं इसी डायग्राम में, ध्यान से देखिए। let me remove this क्योंकि ये पीछे की तरफ, दिस मसल क्या नाम है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, इसको हम एससीएम भी कहते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड फॉर शॉर्ट। तो ये आके ये अपर सरफेस है, दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द क्लैविकल, दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आके अटैच हो रही है। तो ये दो मसल्स नहीं है, इन दो के बारे में वी हैवंट read। तो यहाँ से अटैच हो रहा होता है क्लैविकुलर हेड और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है, ग्रेट। इंफीरियर सरफेस पे देखते हैं, इंफीरियर सरफेस पे भी बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं। पहला होता है कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। तो जब हमने मीडियल एंड पढ़ा था तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया था, दिस इज अ रफ इंप्रेशन, यहीं पे आके अटैच हो रहा होता है, दिस इज द मीडियल एंड, दिस इज द मीडियल एंड, ठीक है। तो यहीं पे आके अटैच हो रहा था आपका कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। तो व्हाट इज द कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था कि यहाँ से इसको कहते थे स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। तो इस लुइस से सेकेंड रिब निकल रही थी और इसके ऊपर से फर्स्ट रिब निकल रही थी। तो इस फर्स्ट रिब को देखिए ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट रिब। तो फर्स्ट रिब का जो कार्टिलेज होता है ना, हाइलाइन कार्टिलेज,
उससे एक लिगामेंट निकलता है एंड इट इज अटैच टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल। तो ये ध्यान से देखिए, इसमें लिखा भी, इसमें लेबल भी है, कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। दिस इज कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, यही होता है, फर्स्ट रिब से निकल रहा होता है एंड ये जाके क्लैविकल के इंफीरियर सरफेस पे अटैच हो रहा होता है। तो मीडियल टू थर्ड के इंफीरियर सरफेस पे क्या है, मीडियल टू थर्ड के इंटीरियर सरफेस पे है कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। उसके बाद इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखें, यहाँ पे दिस इज द सबक्लेवियन ग्रूव, यहाँ पे क्या अटैच होगा, सबक्लेवियस मसल अटैच होगी। तो सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियस मसल अटैच हुई थी। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कहाँ गया सबक्लेवियन, हाँ, दिस इज द सबक्लेवियन ग्रूव। तो इसके मार्जिन्स, दिस द मार्जिन्स ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव, यहाँ पे अटैच होता है, द मार्जिन ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव पे अटैच होता है क्लैविपेक्टोरल फेशिया। हमने पढ़ा था जो क्लैविपेक्टोरल फेशिया होता है वो कुछ क्लैविकल से राइज करता है, नीचे सबक्लेवियस में बढ़ता है, फिर वहां से जाके पेक्टोरालिस माइनर को इनगल्फ करता है एंड फिर वहां से जाके एक्सिला को जाके सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला बनाता है। तो यहाँ क्लैविपेक्टोरल फेशिया, इट इज बेसिकली, जब हमने पेक्टोरालिस मेजर को हटा लिया, पेक्टोरालिस मेजर को कौन सा फेशिया कवर कर रहा था, इट वाज द पेक्टोरल फेशिया। जब हमने पेक्टोरालिस मेजर को रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट मतलब उसको रिमूव कर दिया, तो उसके नीचे हमें दिखेगा पेक्टोरालिस माइनर, बट उसके ऊपर ना एक फिल्म जैसी रहती है, जब डाइसेक्शन करते हैं तो पता चलता है, फिल्म झिल्ली टाइप कह सकते हैं, झिल्ली। सो दैट इज द क्लैविपेक्टोरल फेशिया और वो मार्जिन ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव से अटैच होता है, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन भी यही होता है, लेटरल एंड ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव। दिस इज द सबक्लेवियन ग्रूव, इसका लेटरल एंड, इस एंड पे यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन के बाद ऑस्टियो के बारे में ऑस्टियोलॉजी में विल बी स्टडिंग कि क्या होता है, हाउ इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बोन एंड ऑल। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन का भी बस याद रखिए, लेटरल एंड ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव पे होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो जब हम एक बार पूरा बना लेते हैं। अच्छा, ये किस साइड का क्लैविकल है, ये किस साइड का क्लैविकल है, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, इतना मैं बता सकता हूँ। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेट्स स्टार्ट। मीडियल एंड क्या है, क्वाड्रेंगुलर है, लेटरल एंड फ्लैट लग रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स एंटीरियरली, सी ए, कॉन्वेक्स एंटीरियरली, ये कॉन्वेक्स होता है, आगे की तरफ से देख रहे हैं हम, आगे आंख है, तो कॉन्वेक्स एंटीरियरली, दिस इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली। भाई पीछे से देखने लगेंगे तो कॉनकेव हो जाएगा, बट अभी हम लोग एंटीरियर उसमें बात करें तो द मीडियल एंड, द मीडियल एंड, सॉरी गलत हो गया, जस्ट अब देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं। सो कॉन्वेक्स एंटीरियरली, दिस इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड concave post, medial end is convex anteriorly, ठीक है। एंड ये हो गया, ये टॉप व्यू है तो ये स्मूथ दिख रहा है हमें, यहाँ पे कोई रिजेस नहीं देख रहे हैं। मीडियल एंड जो है, मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, लेटरल एंड इज फ्लैट। अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज द क्लैविकुलर, क्लैविकल ऑफ राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, इतना आप इमेजिन कर पा रहे होंगे आई गेस। दिस इज द क्लैविकल ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो मीडियल एंड अभी तक हमने देख लिया था, तो मीडियल एंड में बाइफरकेट कर देते हैं, दिस इज टू थर्ड मीडियल। तो सबसे पहले तो एंटीरियरली, यहाँ से ये सरफेस जो होगा, यहाँ से राइज करेंगे क्लैविकुलर फाइबर्स ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर के क्लैविकुलर फाइबर्स, बेसिकली हाँ, पेक्टोरालिस मेजर। उसके बाद पीछे रहेगा आपका स्टर्नोहायोइड,
स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोहायोइड। उसके बाद ऊपर से अटैच हुआ है इस पार्ट में, सुपीरियरली, सुपीरियर मीडियम, यहाँ से निकलेगा दिस दिस पार्ट, यहाँ से निकलेगा द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। इन्फीरियरली चार चीजें रहेंगी, तीन उसमें से इंफीरियर सरफेस में पहला आपका रहता है सबक्लेवियस मसल, ठीक है, great। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज द कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, यहाँ पे रफ इंप्रेशन होता है, कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। उसके बाद मार्जिन ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव से, मार्जिन से निकलता है मार्जिन ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव, इससे निकलता है द क्लैविपेक्टोरल फेशिया। और लेटरल एंड, लेटरल मतलब इस तरफ, टुवर्ड्स दिस, लेटरल एंड ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव से न्यूट्रिएंट फोरामेन निकलता है। सो all the muscles and attachments of the medial two-third of the clavicle are clear, I guess everything is clear, ठीक है। This is साइड डिटर्मिनेशन, ये लेफ्ट साइड का क्लैविकल है, मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर है, लेटरल एंड फ्लैट है, ठीक है, मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, लेटरल एंड इज फ्लैट। उसके बाद ये अपर सरफेस स्मूथ है एंड लोअर सरफेस इज रफ, एंड द आगे पीछे के लिए कॉन्वेक्स एंटीरियरली, एंड आगे से देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगा, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा मीडियल का। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेटरल वन थर्ड। तो लेटरल वन थर्ड का एंटीरियर सरफेस नहीं होगा, बॉर्डर होगा, क्योंकि लेटरल वन थर्ड इज फ्लैट। तो अगर ऐसी मसल है तो इसमें कोई सरफेस दिख रहा है आगे की तरफ, नहीं, जस्ट अ बॉर्डर, बॉर्डर से अटैचमेंट होगा। तो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर से क्या निकलता है, सुपीरियर सर्फेसेस होंगे, बट एंटीरियर और पोस्टीरियर बस बॉर्डर होगा। तो ध्यान से देखते हैं इसके लिए ना, दो चीजें हमें याद रखनी होंगी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। दिस इज द क्लैविकल एंड दिस इज द स्कैपुला, एंड हमने देखा था यहाँ पे ओवल फेसेट था, एंड ओवल फेसेट ही एक्रोमियल फेसेट ऑफ द स्कैपुला से आर्टिकुलेट होता था। तो मैंने बहुत अच्छी ट्रिक याद करने के लिए बताई थी कि जो अंदर वाला वी बना दैट इज फॉर द, याद कीजिए, जो बाहर वाला वी बना या यू बना दैट इज फॉर, अंदर वाला था फॉर ट्रेपीजियस, बाहर वाला था फॉर डेल्टॉइड। तो ये दोनों हमारे एंटीरियर सरफेस, द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल वन थर्ड पे ट्रेपीजियस रहेगा एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड रहेगा। ये दो बहुत इजीली हो गए, इंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड, पोस्टीरियर पे ट्रेपीजियस, ग्रेट। उसके बाद इंफीरियर में क्या होता है ना, इसी में और डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम से सबसे अच्छे से समझ आता है। ये डोर्सल है, दिस इज द डोर्सल स्कैपुला, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पाइन दिख रहा है। अब इसी को मैं वेंट्रल स्कैपुला बनाऊंगा। वेंट्रल स्कैपुला में, वेंट्रल स्कैपुला, दिस इज convex anterior, दिस इज द वेंट्रल स्कैपुला। अभी जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बताइएगा ये क्या है, दिस इज अ फ्री हैंड ड्राइंग। तो वेंट्रल में खाली एक्रोमियल प्रोसेस दिखता है, स्पाइन नहीं दिखता है। दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस। क्या होता है ना, कोराकोइड प्रोसेस से फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ये फाइबर्स, या इसको हम, इसी को कहते हैं हम कोराकॉइड से क्लैविकल, कोराकॉइड टू क्लैविकल, कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट। दिस थिंग, दिस थिंग इज कॉल्ड द कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट, कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट।
तो इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, लिगामेंट के दो पार्ट्स होते हैं। अब याद करने में इजी रहेगा। CM से हमने याद किया था कोनॉइड ट्यूबरकल इज मीडियली, ठीक है। कोनॉइड ट्यूबरकल इज मीडियली, तो जो मीडियल तरफ ये है, तो मीडियल पार्ट, ये एक पार्ट मान लो, ये पार्टीशन है, ठीक है। तो समझ लो, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। दिस इज कोनॉइड, दिस इज द ट्रेपेजॉइड, क्योंकि कोनॉइड पार्ट मीडियल था। दिस इज द कोनॉइड पार्ट of clavicular ligament, of coracoclavicular ligament. This is the trapezoid part of coracoclavicular ligament. तो यहाँ पे आके अटैच हो रहा है कोनॉइड रिज, कोनॉइड ट्यूबरकल से ये, दिस इज अटैचिंग टू द कोनॉइड ट्यूबरकल एंड दिस इज अटैचिंग टू द कोनॉइड ट्रेपेजॉइड रिज। तो इतना समझ, बस यही समझ रहा था। तो यहाँ पे कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज, CM कोनॉइड इज मीडियल अटैचमेंट टू द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। मसल अटैचमेंट्स हो गए पूरे क्लैविकल के, बस इतना ही याद रखना है। बस दो ही नई मसल है बेसिकली, उनको अच्छे से याद रखिएगा। एक ये है स्टर्नोहायोइड, एक ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। बाकी सब मोर और लेस हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया। कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट और कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट ये थोड़े नए हैं, बट ये भी हम आगे फिर से इसको रिपीट करेंगे, कोरैकोइड प्रोसेस, जब हम स्कैपुला पढ़ेंगे। तो बस ये चार पांच चीजें नहीं थी, चार चीजें नहीं है, बाकी सब ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद प्रीवियस लेक्चर्स। हम्म। अब पेक्युलैरिटीज देख लेते हैं। पेक्युलैरिटीज, दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये ऐसे रखी हुई है, बाकी सारी लॉन्ग बोन्स ऐसे रहती हैं। तो इट इज द ओनली लॉन्ग बोन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, तो इसमें मेडुला और कॉर्टेक्स में डिवीजन नहीं होता, जिसका मतलब है कि इसमें बोन मैरो नहीं होगा, जिसका मतलब है इसमें हीमोपोइसिस नहीं होगा, मतलब एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। सबक्यूटेनियस थ्रू आउट है, ये बिलो द स्किनी है, कहीं पे भी क्लैविकल अब स्किन से बाहर नहीं आ रही। And it is the first bone to start ossification and it is the last to ossify. फिफ्थ to सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रायूटेलाइन लाइफ, इंट्रायूटेलाइन लाइफ में ही ऑसिफिकेशन शुरू हो जाता है, बट 25 ईयर्स पे जाके कंप्लीट होता है ऑसिफिकेशन जो है। ऑसिफिकेशन इज नाउ नॉट इन सिलेबस, बट थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, यू नेवर नो, एग्जामिनर्स पूछ ले। नॉट इन सिलेबस। फिट, तो ये हो गया। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन टू ऑसिफाई विद टू प्राइमरी सेंटर्स। तो ना देखो, ऑसिफिकेशन में क्लैविकल के बीच से दो प्राइमरी सेंटर्स निकलते हैं। एक है ये दो प्राइमरी सेंटर्स, और सेकेंडरी सेंटर एक स्टर्नल एंड से निकलता है, और एक एक्रोमियल एंड से भी ओकेजनली निकलता है। तो स्टर्नल एंड से तो निकलता है ओकेजनली, एक्रोमियल एंड से भी निकल जाता है। तो इट इज द ओनली बोन टू ऑसिफाई विद, इट इज द ओनली बोन टू ऑसिफाई, लॉन्ग बोन टू ऑसिफाई विद टू प्राइमरी सेंटर, एंड इसके दो सेकेंडरी सेंटर होते हैं, जबकि ये ओकेजनल होता है, बट स्टिल हम मान लेते हैं। तो इस टोटल ऑसिफाइड बाय फोर सेंटर्स, चार सेंटर से होता है, दो प्राइमरी दो सेकेंडरी, एक्रोमियल वाला और ओकेजनल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस और ऑसिफिकेशन होता है, पूरी बोन मेम्ब्रेन में होती है एक्सेप्ट द मीडियल एंड, मीडियल एंड जो है वो कार्टिलेज में ऑसिफाई होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। वरना दोनों या तो मेम्ब्रेनस होता है या कार्टिलेजिनस होता है, एंड लॉन्ग बोन्स का यूजुअली कार्टिलेजिनस होता है, बट इट इज द ओनली लॉन्ग बोन जिसका मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होता है, एंड क्यूटेनियस नर्व से पियर्स हो सकता है, सुप्रा क्लैविकुलर या क्यूटेनियस नर्व जो होती है उससे पियर्स्ड होता है कई बार क्लैविकल। सो ये है, इसको नर्व को हम सुप्रा क्लैविकल ओकेजनली, इसी को हम सुप्रा क्लैविकुलर नर्व भी कहते हैं, क्लैविकुलर नर्व। ग्रेट। उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। उससे पहले ना, क्लिनिकल कोरिलेशन से पहले एक बार फंक्शंस ऑफ क्लैविकल भी देख लेते हैं। फंक्शंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट बुक में एक टॉपिक है तो देख ही लेते हैं।
पहली चीज फंक्शंस में, इट इज अ स्ट्रट, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रट। तो मतलब ट्रंक है यहाँ पे एंड अपर लिम्ब है यहाँ पे, दिस इज द अपर लिम्ब। तो इसके बीच में रॉड जैसा है, दिस इज द क्लैविकल। तो इसी रॉड को स्ट्रट कह सकते हैं। इट acts as a strut. It so allows the upper limb, which is far from the trunk, to move freely. ठीक है, and upper limb, this is transmit force from upper limb. Upper limb is part of axial skeleton, sorry, appendicular skeleton, appendicular, and this is the axial skeleton. So upper limb to axial skeleton. Great. And attachment to muscles तो करता ही करता है, attachment to muscles. This is not very important topic, but still बुक में दिया है तो कर लेते हैं। उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन में क्लैविकुलर फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन इफ यू फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। ये बेसिकली ये कौन सा क्लैविकल है एक बार बताइए, साइड डिटरमिन कीजिए। So basically this is the right clavicle. Okay, so the medial 2/3 और lateral 1/3 जहाँ पे आके जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं ना, दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लैविकल। ठीक है, तो जब हम आउटस्ट्रेच हैंड मतलब जब हाथ आगे होता है उसको, क्योंकि जब भी इंसान गिरता है तो टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि जो हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ को आगे करता है। तो उससे क्लैविकुलर फ्रैक्चर के चांसेस और बढ़ जाते हैं क्योंकि लेटरल और मीडियल के जंक्शन बहुत वीक होता है। एंड जब टूटने के बाद लेटरल एंड जो इस तरफ वाला एंड है, इस पे पूरे इस लिम्ब का भार आता है, द होल वेट ऑफ द लिम्ब इज कम्स ऑन द लेटरल एंड, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता है। एंड मीडियल एंड, यहाँ पे स्टर्नोहायोइड मसल होती है और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है, वो इसको ऊपर खींचते हैं तो ये ऊपर डिस्प्लेस होता है अपवर्ड्स। इसको ठीक करने के लिए वी यूज द 8 बैंडेज, दिस इज द 8 बैंडेज। क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लास्टर तो लगा नहीं सकते, इट इज अ सबक्यूटेनियस बोन, इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, तो 8 बैंडेज इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लैविकुलर फ्रैक्चर। उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन में क्लैविकल अगर एब्सेंट हो तो उसे क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस कहते हैं, डिसोस्टोसिस। इट इज ड्यू टू डिफेक्टिव ऑसिफिकेशन एंड क्लैविकुलर डिसोस्टोसिस में मीडियल एंड लेटरल पार्ट जुड़ते नहीं। तो ये मीडियल पार्ट है, अगर दिस इज द दिस इज द मीडियल पार्ट, दिस इज द लेटरल पार्ट, तो ये दोनों सेम रह जाते हैं, दिस रिमेन्स है। तो दिस इज कॉल्ड क्लैविकुलर डिसोस्टोसिस। एंड क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस में क्लैविकल होल्डली एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्लैविकल है, यहाँ पे एब्सेंट है। So this is a case of cleidocranial dysostosis. Ossification हमने देख लिया. So that was all about the clavicle. Was all about clavicle. Thank you for watching. And if you learn something, if you are benefited from this, do consider subscribing. Do like this video and share with your friends. Thank you so much.